گئی ہے، اور خاص طور پہ اب جو کافی کارکن جو اس وقت جیسے وسیم کے ساتھ بتا رہے ہیں کے ساتھ، لیکن پولیس آہستہ آہستہ اس حصے کی طرف بڑھ رہی ہے، اسٹیج تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن اندر بھی کارکن کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں، جبکہ باہر پولیس کی نفری بھی موجود ہے جو سی پی او ملتان حسن خان کی قیادت میں ہے، اور یہ کم از کم فیصلہ کیا گیا ہے کہ جلسے کے حوالے سے جتنے بھی کارکن اب حراست میں جو متحرک ہیں انہیں اس جگہ پر موجود ہیں انہیں آہستہ آہستہ حراست میں لیا گیا ہے۔ جی شہید وانی صاحب، یہ کہی گیا کیونکہ صورتحال شہر کی کشیدہ ہوتی جا رہی ہے، الٹیمیٹم دیا گیا ہے 12 گھنٹے کا کہ اگر ہمارے بھائی کو گرفتار کیا گیا ہے، انہیں اریسٹ نہ چھوڑا گیا تو حالات شہر کے جو ہیں وہ کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ علی حیدر گیلانی نے ایسا کہا ہے۔ جی، علی حیدر گیلانی نے ظاہر ہے ان کے بھائی گرفتار ہوئے ہیں، لیکن علی حیدر گیلانی کو خود بھی پولیس نے حراست میں لے لیا تھا اور انہیں گاڑی میں لے کے جایا جا رہا تھا، جو آپ ہم فوٹیج اور ان کا ساؤنڈ بائٹ بھی دکھا رہے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے احتجاج کیا اور یہ کہا کہ بھائی میں سٹنگ ایم پی ہوں اور آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے، میرا بنیادی حق ہے، میں گورنر کو میں اسپیکر کو کہوں گا، تب انہیں کچھ پولیس کے جو کانسٹیبل تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے ہدایت لینے کے بعد انہیں وہیں چھوڑ دیا کیمرے کے سامنے ہی۔ تو اس کے بعد ان کا یہ بیان ظاہر ہے کہ کسی بھی طرح جو انہوں نے کہا ہے کہ جو احتجاج ہوگا اگر انہیں رہا نہ کیا گیا تو یقیناً کل صبح بڑے پیمانے پہ پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے اور پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے، جو کہ صبح مولانا فضل الرحمان پہنچ رہے ہیں، جے یو آئی فے کے سربراہ رانا ثناء اللہ مسلم نواز کے اہم رہنما اور بھی رہنما پہنچ رہے ہیں، تو یقیناً اگر یہ گرفتاریوں پر پی ڈی ایم کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے احتجاج سامنے آ سکتا ہے اگر صبح گرفتاریاں یہ جو ہیں ان گرفتار رہنماؤں کو رہا نہ کیا گیا۔ رضوانی صاحب، یہ بھی کہیے گا کیونکہ جس طرح سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ہم نے پرسوں دیکھا کہ علی موسیٰ گیلانی کو گرفتار کر لیا گیا، آج قاسم گیلانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو پیپلز پارٹی کا جو پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے اوورال اگر اسے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے وہ ضلعی انتظامیہ اور حکومت نے ہی کامیاب بنا دیا ہے۔ جی، یہ موقف ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی قیادت کا ہے، اور وہ صحیح ہے کہ دیکھیں وہ جو جلسہ جو ایک دن میں 2 یا 3 گھنٹے کا ایونٹ تھا ہونا تھا، وہ اب مسلسل آج جب سے ہیڈ لائنز میں ہے، خبروں میں ہے اور مسلسل توجہ کا مرکز ہو گیا ہے یہاں کا پورے پاکستان کا، اب انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کور کر رہا ہے، تو یقیناً اس حوالے سے جو ان کا مقصد ہے وہ پوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ تو اور زیادہ اسے پبلسٹی ملی ہے، اور خاص طور پہ پبلسٹی کے ساتھ ساتھ جو ان کا مقصد ہے عوام کو اس حکومت کے بارے میں ایک رائے بنانے کا، وہ اس نے حکومت نے خود ہی جواز پیدا کر دیا ہے۔ اور لیکن اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی قیادت اس جلسے کو قاسم باغ اسٹیڈیم میں ہی کرنے پر اصرار کر رہی ہے، ان کا پلان یہی ہے، لیکن اگر نہ بھی اجازت ملی تو ان کا جو پلان بھی ہے وہ شہر میں 12 سے زیادہ مقامات پر پی ڈی ایم کی قیادت وہ ہے، وہ مختلف مقامات پر احتجاجی ریلی نکالے گی اور جلسے کرے گی، اور یہ پورا دن کا ان کا پلان ہے کہ 30 نومبر کو اگر سی ڈی ایم میں نہ کرنے دیا تو پھر یہ حکمت عملی ہوگی۔ حکمت عملی ہوگی۔ رضوانی صاحب، یہ بھی کہیے گا بلاول بھٹو صاحب نے ابھی ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے قاسم گیلانی کی جو گرفتاری ہے اس پر بھی انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میری جگہ آصفہ بھٹو زرداری جو ہیں وہ شرکت کریں گی، گو کہ وہ کوارنٹین ہیں بلاول بھٹو زرداری، لیکن اس ساری صورتحال ساری سینیریو سے وہ باخبر دکھائی دے رہے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، ایک تو وہی بات کہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے رد عمل کا اظہار بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اس کے باوجود یہ جلسہ بھی ہوگا اور ان کی نمائندگی آصفہ بھٹو کریں گی جو ان کی بہن ہے، اور ان کی جنوبی پنجاب میں اور اس علاقے میں سرائکی علاقے میں ایک پہلی پولیٹیکل انٹری ہوگی، اور یہ ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو جنوبی پنجاب کی کارکن ہیں اور رہنما ہیں ان کے لیے یقیناً حوصلے کی بات ہے کہ اگر آصفہ اپنے جنوبی پنجاب میں اس طریقے سے اتنے بڑے ایونٹ پر وہ اگر شریک ہونے آ رہی ہیں تو اس کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو قیادت کو یہاں ہوا ہے اس جلسے کے حوالے سے، اس اعلان سے کہ اگر بلاول صاحب نہیں پہنچ رہے تو، لیکن اس کے ساتھ ہی جو مسلم لیگ نواز کی قیادت ہے عبد الرحمان خان جو ڈویژنل صدر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز
اس جلسے میں شریک ہوں گی اور وہ خطاب کریں گی. تو اور مولانا فضل الرحمان صبح پہنچ رہے ہیں مولانا صاحب. تو یقیناً ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور اس خاص طور پہ ان گرفتاریوں کے بعد جو صبح اگر اور رات گئے اور گرفتاریاں ہوتی ہیں اور صبح اس گرفتاریوں کے ماحول میں کل کا دن کا آغاز ہوتا ہے تو یقیناً اپوزیشن جو ہے اپنے رد عمل کا اظہار کل دن میں ملتان میں مختلف مقامات پر مختلف صورت میں کر سکتی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ پی ڈی ایم شاید ملک کے مختلف حصوں میں بھی اس پر احتجاج کی کال دے سکتی ہے. احتجاج کی کال دے سکتی ہے. رضوانی صاحب اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. وسیم شہزاد قلعہ کونا قاسم باغ کے باہر موجود ہے, ان سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں. وسیم بتائیے گا تازہ ترین صورتحال اس وقت کیا ہے قلعہ کونا قاسم باغ کے باہر, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل عمران, اگر بات کرتے چلیں اس پی ڈی ایم کے جلسے کی تو آج ہونے والی یہ تمام تر معاملات کے بعد جو قلعہ کونا قاسم باغ ہے اس کی لائٹس کو بھی آف کر دیا گیا ہے. اس کے قلعہ کونا قاسم باغ جو اب سے کچھ دیر قبل جو ہے روشنیوں میں جگمگا رہا تھا اس کو بھی اب اس حوالے سے آف کر دی گئی ہے تمام لائٹس کو. ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ اور کارکنان موجود ہیں, کیا کہیں گے, کیسے دیکھ رہے ہیں تمام تر صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اگر اسی کو جمہوریت کہتے ہیں تو اس سے اچھی امریت ہے. اور خان صاحب تو کہا کرتے تھے کہ آپ جلد سے جلوس کریں میں کنٹینر دوں گا, لیکن آج یہاں پر گرفتاریاں آپ میڈیا خود دیکھ رہی ہے کس طریقے سے کی جا رہی ہیں, اور یہ لائٹس بھی آف کر دی ہیں, اور شاید ہم بھی اب گرفتار ہو چکے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے کیا ہوگا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اگر ہم گرفتار بھی ہو گئے تو انشاءاللہ جلسہ ضرور ہوگا. انشاءاللہ 30 نومبر کو جلسہ پی ڈی ایم کا ضرور ہوگا اور کامیاب جلسہ ہوگا. خان صاحب آپ نہ گھبرائیں, آپ نہ گھبرائیں, کیونکہ عوام مہنگائی سے اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے, گھبرا چکی ہے. شکریہ. بالکل بڑی تعداد جو ہے وہ شہریوں کی اور کارکنان کی اس حوالے سے یہاں پر موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کرتے چلیں اس وقت کے تازہ ترین صورتحال کی, تو تازہ ترین کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو باہر اسٹیڈیم سے باہر کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو اسٹیڈیم کے باہر ابھی بھی پکڑ دھکڑ کا جو سلسلہ ہے وہ تاحال جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رہنما ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو قیادت کے ساتھ ساتھ کارکنان ہیں وہ قلعہ کونا قاسم باغ کے اندر ہی موجود ہے. چاروں اطراف سے قلعہ کونا قاسم باغ کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھیجی گئی پولیس نے گھیر لیا ہے. اس کا مکمل طور پر محاصرہ ہو چکا ہے. اب جو اندر لوگ موجود ہیں ان کا بھی اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ وہ بھی اس حوالے سے اریسٹ ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کرتے چلے ہم قلعہ کونا قاسم باغ کے اندر کی, تو قاسم باغ مکمل طور پر روشنیوں سے اب سے کچھ دیر پہلے جگمگا رہا تھا, لیکن اب مکمل طور پر اس کی لائٹس بھی آف کر دی گئی ہیں. کارکنان نے رات بھر یہیں پر ہی پڑاؤ کرنا تھا, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کارکنان اس حوالے سے کیا بنتے ہیں. کیا ضلعی انتظامیہ کارکنان کو اندر رہنے کی اجازت بھی دیتی ہے یا پھر کارکنان کو بھی یہاں سے گرفتار کر لیا جائے گا. اگر ہم باہر کی صورتحال کی بات کرتے ہیں تو قلعہ کونا قاسم باغ کے چاروں اطراف میں جتنے بھی باہر کارکنان موجود تھے ان کو مشتعل کر دیا گیا, کچھ کو گرفتار کر لیا گیا, اور جو کارکنان ہیں وہ بچ کر بھاگ کر قلعہ کونا قاسم باغ کے اندر پہنچے. اور یہاں پر جو ان کے رہنما موجود تھے ان کے ہمراہی انہوں نے ایک جٹ کی صورت میں یہاں پر جو سٹیج بنایا گیا تھا مرکزی قیادت کے لیے, یہاں پر تمام کارکنان اس حوالے سے موجود تھے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو کارروائیاں ہیں ان کو مزید سخت کیا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے مزید جو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. جو پہلے گراؤنڈ سے باہر تھا, پہلے اسٹیڈیم سے باہر عمل تھا, وہ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسٹیڈیم کے اندر تک پہنچ چکا ہے. اور اسٹیڈیم کے اندر سے بھی کارکنان کو گرفتار کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے. اگر بات کرتے چلیں قلعہ کونا قاسم باغ کے تقریباً 4 سے زائد دروازے ہیں جن کے اوپر اس طرح کی جو پولیس کی بھاری نفری ہے وہ پہنچ چکی ہے. اس وقت میں مرکزی قیادت کے لیے بنائے گئے اسٹیج پر موجود ہوں جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس حوالے سے کارکنان کی موجود تھی, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. کچھ مرکزی قیادت بھی یہاں پر موجود تھی, لیکن وہ قیادت بھی جن میں علی موسیٰ گیلانی کو بھی انہوں نے گرفتار کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ علی حیدر کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ حکومت کو 12 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے. اگر حکومت 12 گھنٹے کے اندر اندر ان تمام کارکنان کو جن کو گرفتار کیا گیا رہا نہیں کرتی تو آنے والا
जो वक्त है वो मजीद कठिन फैसले जो है वो इस हवाले से कर सकता है। अगर बाहर की सूरत हाल की बात करें तो बाहर की सूरत हाल में कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जो कारकुनान हैं वो अपने रहनुमाओं के हमरा ही मरकजी जो स्टेज है यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त जो है इस हवाले से क्या फैसले करता है। आने वाला वक्त इस हवाले से क्या फैसले करता है। बेहतर वसीम शहजाद ये कहिएगा, क्योंकि सारे दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं, लाइट्स भी ऑफ कर दी गई हैं, कुछ कारकुनान जो हैं वो यकीनन बाग के अंदर हैं और आधे जो कारकुनान हैं वो बाहर हैं। क्या देख रहे हैं ये जो कारकुनान हैं, यकीनन मुश्तिल भी होंगे, क्या कहना है उनका, कितने चार्ज दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि जो अली हैदर गिलानी थे उन्होंने आज सुबह जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि हमने एक जलसा करने की इजाज़त मांगी थी लेकिन जिला इंतजामिया ने हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। आज से 3 जलसे होंगे, एक जलसा आज होगा, एक कल होगा और तीसरा परसों जलसा होगा। तो वही सूरत हाल जो उन्होंने कही थी खूब वही सूरत हाल है इस वक्त। वसीम शहजाद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कहिएगा। बिल्कुल, कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो इस हवाले से यहाँ पर मौजूद है। अगर इसके साथ साथ आपको इसका जो किला कोना कासिम बाग का ग्राउंड है जिसमें ये जलसा मुनाकिद होना था, इसका आपको 360 व्यू जो है आज दिखाते हैं कि जो अब से पहले जो है वो इस हवाले से खूबसूरत जो रोशनियों में घूम रहा था, अब उस जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर ये किला कोना कासिम बाग जो है वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर जो अंधेरे में डूब चुका है। और इसके साथ साथ बात करें कारकुनान का जो जोश व जज्बा है वो भी वक्त गुजरने के साथ साथ मान पड़ता जा रहा है, क्योंकि सियासी रहनुमा जो यहाँ पर मौजूद थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ साथ जो कारकुनान हैं उनकी भी जो गिरफ्तारी का सिलसिला है वो इस हवाले से जारी है। और शहरी हमारे वसीम शहजाद से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, ये मनाज़रा मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मज़ीद बात करने के लिए जमशेद रिजवानी साहब हमारे साथ मौजूद है। रिजवानी साहब कहिएगा, आज सुबह हमने देखा कि जो हैदर गिलानी हैं उन्होंने कहा कि हमने एक जलसा करने की इजाज़त मांगी थी लेकिन इंतजामिया ने हमें जलसे की इजाज़त ना दी। उन्होंने कहा कि आज से 3 जलसे होंगे, एक आज जलसा होगा, एक कल होगा, एक परसों होगा। और अगर सूरत हाल मुलाहिज़ा की जाए तो सूरत हाल खूब है, जलसे वाली सूरत हाल है। जी ऐसे ही है, जाहिर है कि इसका जो सियासी नुकसान है वो अपोजिशन समझती है कि वो हुकूमत को पहुंचाने में कामयाब हो रही है। इस तरीके से जलसे को रोक के 30 नवंबर के जलसे को रोक कर उन्होंने ये जलसा 28 नवंबर से ही शुरू कर दिया है। जितना जो एक्टिविटी, जो मैसेज, जो पैगाम हुकूमत को मिल रहे हैं अपोजिशन की तनकीद की सूरत में, वो उसके हवाले से देखा जा रहा है कि खास तौर पर की एक्टिविटी है जो मुसलसल मीडिया, सोशल मीडिया और पॉलिटिकल उसमें सर्कल्स में इस जलसे के हवाले से, दबाव के हवाले से, वो होने वाली सरगर्मियों के हवाले से, वो होने वाले कार्यक्रम के हवाले से यकीनन तवज्जो का मरकज हासिल है अपोजिशन की इस एक्टिविटी को। तो ये जाहिर है कि उनका गिलानी साहब का बिल्कुल सही मौक़िफ़ है। अगर आप इसको देखें कि अपोजिशन अपना मौक़िफ़ लोगों पर आवाम में पहुंचाना चाहती थी, वो तो पहुंचना शुरू हो चुका है। आज से ही मुसलसल हेडलाइन में है मकान का जलसा, तो वो जो अहमियत और तवज्जो हासिल करी थी वो तो हासिल करने में अपोजिशन पीडीएम आज से ही कामयाब नजर आ रही है, ज़ाहिर अगर हम देखें तो। जी ऑपोजिशन और जो पीडीएम है कामयाब दिखाई दे रही है। रिजवानी साहब ये कहिएगा, क्योंकि अब जो किला कोना कासिम बाग था उसके 4 गेट हैं और चारों जो गेट हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं और जो कारकुनान अंदर थे वो अंदर हैं, जो बाहर हैं वो बाहर थे। इसके साथ साथ उसकी लाइट्स भी बंद कर दी गई हैं। तो मतलब ये भी, इसे हम किस तरह से देखें, क्योंकि मुमकिन है कि अब मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती हैं, क्रैकडाउन हो सकता है। पहले भी बता रहे हैं कि जो 12 बजे से शुरू है वो अभी जारी है, ये रुका नहीं है। और जैसे जैसे आगे रात बढ़ रही है और कारकुनों की तादाद जाहिर बहुत कम हुई है, उसका फायदा यहाँ की जो है वो पुलिस और इंतजामिया लेना चाहती है, वो ले रही है। और अगर हम उसको देखें तो उस वक्त उन्होंने जो गिरफ्तारी शुरू की है उस वक्त शुरू की है जो रात 20 जब गुजरने के बाद शुरू की है। और आहिस्ता आहिस्ता इनका मकसद ये है कि जितने भी कारकुनों को उनको गिरफ्तार किया जा सकता है किया जाए और स्टेडियम
के ये जलसा करेंगे। और इस हवाले से मास्क 1 लाख से ज्यादा तैयार किए गए हैं और जो SOPs हैं उन्हें फॉलो किया जाएगा, लेकिन वो जलसा जरूर करेंगे। भारत इस वक्त कशीदगी है कासिम बाग स्टेडियम में, उसके इर्द गिर्द। और अब जाहिर है कि इस वक्त जो लाइट्स बंद हैं, जो जनरेटर के जरिए कोशिश की गई थी कि वहाँ पे पंडाल को तैयार किया जा सके, तो वहाँ उस जनरेटर को बंद किया गया है और लाइट इस वक्त अंधेरा है। यकीनन पुलिस क्रैकडाउन का इरादा रखती है आगे भी, और उस क्रैकडाउन को आगे बढ़ा सकती है। और प्लानिंग और इस वक्त कोशिश ये है, जो पुलिस की भारी नफरी और गाड़ियां मौजूद हैं गिरफ्तार कारकुनों को आगे ले जाने के लिए, वो भी मौजूद हैं। पुलिस एहलकार मौजूद है, हिकमत अमली मौजूद है और वो नजर आ रही है। CPO महताब हसन खान खुद भी यहाँ पे SP ऑपरेशन और दीगर पुलिस नफरी के साथ यहाँ मौजूद है और इस क्रैकडाउन को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्रैकडाउन बढ़ाया जा रहा है, गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, क्योंकि आप रिजवान साहब सारी सूरत हाल का बखूबी वहां पे जायजा भी ले रहे हैं और देख भी रहे हैं। हमने देखा कि जो पहले कारकुनान मुश्तइल थे वो अब क्योंकि आधे कारकुनान अंदर रह चुके हैं, आधे बाहर हैं, मुश्तइल भी हो गए हैं। अब जो सूरत हाल थी किला कोना कासिम बाग की, वो जो जोश था, जो जज्बा था, वो मांद पड़ता भी दिखाई दे रहा है। जो कारकुन जाहिर है इस वक्त आधी रात है और आधी रात से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। जो कारकुन वहाँ मौजूद थे उनमें से कुछ जहर चले गए थे, लेकिन कारकुनों की बड़ी तादाद बाहर अंदर मौजूद है। कुछ लीडर्स अंदर मौजूद हैं मुस्लिम नवाज के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जमीयत उलमा इस्लाम के और दूसरी में इत्तेहादी जमातों के, वो अभी भी मौजूद हैं। इसी वजह से आप देखें तो लाइट भी बंद की गई है ताकि जो भी ऑपरेशन हो उसमें एक तो खौफ पैदा किया जा सके और खास तौर पे इसकी ये कोशिश की जा सके कि इस अंधेरे की वजह से जो कारकुन हैं वो खुद भी इस एहसास का शिकार हो कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। वो कारकुन जो यहाँ से जाना चाहते हैं वो जा भी सके, तो उनको भी मेरा ख्याल है कि शायद जाना दिया जाए, लेकिन कुछ कारकुनों या रहनुमाओं को अभी भी हिरासत में लिए जाने की हिकमत अमली तैयार है, जो इस वक्त मज़ाहमत करने को तैयार है। बेहतर रिजवानी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं वसीम शहजाद की जानिब। वसीम, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या देख रहे हैं, जो वहां पर कारकुनान हैं कितने चार्ज दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल इमरान, यही कारकुनान से ही जानते हैं कि वो कितने चार्ज हैं। लाइट्स जो हैं वो ऑफ कर दी गई हैं और इसके साथ साथ अगर बात करते चलें, जो मरकजी क़यादत यहाँ पर कारकुनान मौजूद थे वो भी वक्त गुजरने के साथ कम होते जा रहे हैं। कैसा जोश व जज्बा है? क्या जज्बे मान तो नहीं पड़ना शुरू हो गए? नहीं सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई कारकुन कम नहीं हुआ। यहाँ पे ना जो हमारे भाई पुलिस वाले भाई हैं वो आए, उन्होंने लाइटें बंद करा दी हैं। हमारे भाई है ना गिरफ्तार अभी अरेस्ट किए गए, वो कंटेनर हटाने के लिए गए थे, तो वो लोहारी गेट थाने में कुछ अरेस्ट हुए हैं बंदे, वहाँ पे सारे चले गए। ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 23 तारीख को जलसा होगा, कोई घबराने की, और ये चलता है, जमहूरियत का हिस्सा है गिरफ्तारियां वगैरह, तो हम इस तरह बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे अल्लाह की रहमत से। और ये जो इमरान हुकूमत है ये जो चला रही है सिस्टम, कोई ऐसी बात नहीं, हम नहीं घबराएंगे। अपना 30 तारीख को जलसा जारी रहेगा। अगर सारी हुकूमत और सारी जो भी है वो जोर लगा ले, अल्लाह की रहमत से जलसा नहीं रुकेगा इंशाअल्लाह। क्या समझते हैं आप इस हवाले से कि कल जो है वो कौन सी लाहे अमल जो है वो तैयार किया जाएगा? क्योंकि आल पार्टीज जो हैं वो इस हवाले से, एक PDM ने जलसा यहाँ पर करना था, लेकिन इस तरह की तमाम तर सूरत हाल, अब से कुछ देर कबल की बात कर लेते हैं, तो कि जो रोशनियों से जगमगा रहा था और इसके साथ साथ कारकुनान में जोश व वलवला भी कम था, लेकिन इस हैपनिंग के बाद जो वलवला जो है वो कम होता जा रहा है, क्या कहेंगे? सर ये हमारे भाई आए हैं यहाँ पे, पुलिस वाले भाई, उन्होंने लाइटें बंद करवाई हैं। हमारे जो कुछ बंदे साथी इन्होंने पकड़े, यहाँ पे सारे दोस्त हमारे भाई सारे थाने में चले गए उनके पीछे। अभी हम ये कुछ घंटा 2 घंटे के बाद यहाँ पे हम हाजिर हो जाएंगे। अगर हमें भी अरेस्ट किया गया तो कोई ऐसी बात नहीं, हमारे कायद सुबह यहाँ पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। जी कायद जो है वो सुबह यहाँ पर पहुंचेंगे, जिनकी तैयारियां जो है वो इस हवाले से की जा रही हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात करते चलें तो कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो अब से कुछ देर कबल तक तो यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन जो ये मरकजी स्टेज है ये वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो कम होता जा रहा है। शहरी के साथ साथ जो कारकुनान हैं उनकी जो आमदोरफ्त है वो भी मरकजी स्टेज की जानिब कम हो गई है। और इसके साथ साथ अगर बात करते चलें तमाम तर सूरत हाल की, तो तमाम तर सूरत हाल वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो ज़्यादा सूदमंद
नहीं नजर आ रही, क्योंकि अब से कुछ देर कबल जो है ये बरकी कुमकुमों से जगमगा रहा था, लेकिन अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मरकजी स्टेज जो बनाया गया था क़यादत के लिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लोग ही रह चुके हैं, बाकी तमाम कारकुनान जो हैं वो इस हवाले से यहाँ पर मौजूद नहीं। जी बेहतर वसीम, ये कहिएगा, हमने देखा कि अब्दुल कादिर गिलानी ने आज तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तारियों से डरते नहीं हैं, हम गिरफ्तारियां देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने एक न्यू ट्रेंड सेट किया है। पहले अब जो बेहतर जो सीनियर रहनुमा हैं वो गिरफ्तारियां देंगे और उसके बाद जो रहनुमा हमारे कारकुनान हैं वो गिरफ्तारियां देंगे। हमने देखा कि जब कासिम की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जो बाकी गिलानी बरादरान हैं वो नजर नहीं आ रहे। अगर इस तमाम तर सूरत हाल को अब देखें तो देखना ये होगा कि आने वाला वक्त इस हवाले से क्या फैसले करता है। आपको इस ग्राउंड का 360 व्यू जो है वो दिखाते हैं कि इस ग्राउंड में जो अब से कुछ देर कबल जो लाइट्स जो है वो लगाई गई थी, अब उन तमाम तर सूरत हाल का क्या सिचुएशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ ये मरकजी स्टेज है जो मरकजी क़यादत के लिए बनाई गई थी, लेकिन आने वाला वक्त इस हवाले से जो ज़्यादा सूदमंद फैसले है आज के दिन के हवाले से तो नहीं कर सका, क्योंकि जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से जो कंटेनर्स हैं उनको भी हटाया गया और कारकुनान की बड़ी तादाद आज यहाँ पर पहुंची। लेकिन इसके अलावा अगर तमाम सूरत हाल की बात करें तो पकड़ धकड़ के साथ जो ये सिलसिला है वो थम गया और कारकुनान की मजीद आमदोरफ्त इस हवाले से यहाँ पर कम हुई। और शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि वो बहुत ही ज़्यादा पुरअज़्म है, लेकिन देखना ये है कि आने वाला मजीद कल जो है वो आने वाला वक्त इस हवाले से क्या फैसले करता है। अगर आपको मजीद ग्राउंड जो है वो इस हवाले से दिखाया जा सके, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन तमाम तर सूरत हाल जो है वो इस हवाले से काफ़ी मुश्किल शिकार जो है वो हो गई है। और इसके साथ साथ शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद भी थी, लेकिन अब ग्राउंड जो है वो मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूब चुका है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन आज जो ग्राउंड की सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है वो ग्राउंड की सूरत हाल ज़्यादा सूदमंद नहीं। ये 360 व्यू है इस स्टेडियम का, जहां पर पीडीएम की जानिब से जलसा जो है वो मुनाकिद होना था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पर जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से जो शहरियों की आमदोरफ्त है वो भी कम होती गई और शहरियों की तादाद जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ कारकुनान की यहाँ से घटना जो है वो शुरू हो गई। अब देखना ये है कि क़यादत इस हवाले से क्या फैसले जो है वो करने जा रही है। हमारे साथ कुछ और जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे जिनकी जानिब चलेंगे और उनसे भी जानेंगे कि मोहतरमा बताइएगा क्या कहेंगी इन पकड़ धकड़ से, क्या ये कारकुनान जो है इस हवाले से डर जाएंगे, थम जाएंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? पीपल्स पार्टी के कारकुन किसी फिरौन से नहीं डरते। हमने जनरल ज़ियाउल हक का मुकाबला किया, जनरल अयूब का मुकाबला किया, जनरल याया का मुकाबला किया, जनरल मुशर्रफ का मुकाबला किया। अगर तब पीपल्स पार्टी के कारकुनों के हौसले पस्त नहीं हुए थे तो अभी ये किस खेत की मूली है, ये क्या चीज़ है। तो इंशाअल्लाह ताला जलसा होगा, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता और ये दुनिया देखेगी। जब कारकुन यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे तो उनके सामने कोई कंटेनर नहीं रहेगा, कोई पुलिस नहीं रहेगी, किसी चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोहतरमा अगर अब से कुछ देर कबल की बात करते हैं तो ये तमाम स्टेडियम रोशनियों से जगमगा रहा था, कंटेनर्स जो हटा दिए गए थे, यहाँ पर साउंड सिस्टम लग गया था, लोगों ने रात यहाँ गुजारनी थी, लेकिन ना कारकुनान नजर आ रहे हैं ना रहनुमा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए कि कल का सूरज जो है वो क्या अहम फैसले करने जा रहा है, क्या समझती हैं? एक तो जी देखें ठंड बहुत ज्यादा है, उस वजह से जो कारकुन बेचारे हैं वो अपने अपने जहाँ पे उनका स्टे है वो वहाँ पे चले गए हैं। दूसरा, थोड़ी देर पहले जो पुलिस का लाठी चार्ज है, सब कारकुनों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। तो सुबह का जब सूरज निकलेगा तो पूरा मुल्तान देखेगा, बल्कि पूरा पाकिस्तान देखेगा कि दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। पीपल्स पार्टी वाले आ गए हैं, जालों को कोई नहीं रोक सकता। पीडीएम की जानिब से ये कोई पहला जलसा नहीं है जो किया जा रहा है, इससे पहले भी पीडीएम ने बहुत से जलसे किए हैं। इस जलसे को क्यों इतना जवाज बनाया जा रहा है, क्या समझती हैं जिला इंतजामिया इसकी इजाजत क्यों नहीं दे पा रही? सिलेक्टेड घबरा गया है। सिलेक्टेड ने जब पीडीएम के जलसे देखे हैं, जैसे पेशावर में हुआ, कराची में हुआ,
कराची में जो जलसा हुआ उसकी मेज़बान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, और अब ये जो मुल्तान में जलसा हो रहा है इसकी मेज़बान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो सिलेक्टेड घबरा गया, लेकिन पीपल्स पार्टी के कारकुन तो इकट्ठे होंगे क्योंकि ये पीपल्स पार्टी का यौम तासीस का जलसा है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सब जैलों को मुबारक हो कि पीपल्स पार्टी 53 साल की हो गई है, पाकिस्तान की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी। इमरान खान ने खुद बहुत से जलसे किए, खुद बहुत से धरने किए और उनका धरनों से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा। बहुत लंबे लंबे दिनों के, बड़े दिनों के धरने जो हैं वो दिए गए। क्या समझती हैं कि वो इस हवाले से क्यों इन तमाम तर कारकुनान को इस तरह से करने की इजाज़त नहीं दी जा रही? इमरान खान ने तो ये तक भी कहा था इस गवर्नमेंट ने कंटेनर्स दिए जाएंगे, खाना दिया जाएगा। क्या वो तमाम चीज़ें मिल रही हैं? असल जो उनका 126 दिन का धरना था उसमें डांस गाना, नाच गाना सब कुछ होता था, और जो हमारे जलसे होते हैं उसमें दमादम मस्त कलंदर होता है, तो इस चीज़ से वो घबरा जाते हैं। तो उन्होंने वो खाना क्या देना था, उन्होंने तो हर तरफ रुकावटें खड़ी कर दी हैं कि पीपल्स पार्टी के कारकुन इकट्ठे ना हो सके, जलसा ना हो सके, लेकिन जलसा तो फिर भी होगा इंशाल्लाह ताला। जलसा फिर भी होगा और कारकुनान इस हवाले से सरगर्म है, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि आने वाला वक्त जो है वो बहुत अच्छे फैसले करने जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि तुलुए सहर क्या फैसला करता है। देखना यह है कि तुलुए सहर क्या फैसला करता है। हमने देखा वसीम के आज वसीम शहजाद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मजीद हम आपको बताते चलें ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। क्रैकडाउन किया जा रहा है और कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अली कासिम गिलानी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके साथ साथ मुतादिद जो कारकुनान है वो भी गिरफ्तार हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने इस हवाले से ट्वीट भी किया है। उन्होंने तरदीद भी की है कि कासिम गिलानी को पुलिस की जानिब से अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जगह आसिफा भुट्टो जरदारी जो है वो खिताब भी करेंगी। 30 नवंबर को पीडीएम जलसा करने जा रही है किला कोहना कासिम बाग पर। अब से कुछ देर पहले वहां पर कंटेनर लगाए, गुज़श्ता 2 रोज से वहां पर कंटेनर लगाए गए थे, लेकिन अली कासिम गिलानी और अली हैदर गिलानी की जानिब से क्रेनें वहां पर मंगवाई गई थी और कासिम गिलानी खुद क्रेन चलाकर आए थे और रास्ता क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। कंटेनर साइडों पर रखे जा रहे थे ताकि रूट को क्लियर किया जा सके। इसी दौरान पुलिस की जो वहां पर नफरी तैनात थी उन्होंने कासिम गिलानी को गिरफ्तार कर लिया और थाना गुलगश्त में मुंतकिल कर दिया है। उसके बाद सूरत हाल जो है किला कोहना कासिम बाग की वो कशीदा हो गई थी, हाथापाई हुई और हमने ये भी देखा कि मुश्तिल कारकुनान की जानिब से धक्के दिए गए पुलिस को और पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज भी किया और उसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई। 4 गेट हैं किला कोहना कासिम बाग के, चारों गेट जो हैं वो बंद कर दिए गए, लाइट्स उसकी ऑफ कर दी गई हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, क्रैकडाउन किया जा रहा है। पीडीएम के जितने भी कारकुनान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। हमने देखा कि 2 रोज कबल अली मूसा गिलानी को गिरफ्तार किया गया था थाना और उसके बाद वो जमानत पर रिहा हुए थे। आज कासिम गिलानी अरेस्ट हो चुके हैं। कल संडे है, मुमकिन तौर पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अली हैदर गिलानी की जानिब से अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर उनके तमाम कारकुनान और उनके भाई जो हैं अली कासिम गिलानी उन्हें उनकी रिहाई ना हुई तो कल का जो सूरज है वो मुल्तान की जो फजा है वो आलूदा हो सकती है, मुल्तान का जो शहर है उसकी सूरत हाल कशीदा हो सकती है। तो अभी जो सूरत हाल है वो लम्हा बलम्हा हम आपको अपडेट कर रहे हैं। ये मनाजिर बराह रास्त मनाजिरा मुलाहिजा कर सकते हैं। क्रेनें इस वक्त भी कंटेनर्स हटा रही हैं, रूट को क्लियर करवाया जा रहा है ताकि जलसा गाह की जो तैयारियां हैं, तमाम तर तैयारियां उनको मुकम्मल कर लिया जाए। ये मनाजिरा मुलाहिजा कर सकते हैं, ये फजाई व्यू आप मुलाहिजा कर सकते हैं, ड्रोन व्यू है, एरियल व्यू भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि पुलिस और जो कारकुनान हैं उनके दरमियान हाथापाई जारी है। मुश्तिल कारकुनान हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की गई कि वह ऐसा ना करें। जलसा करने की इजाजत जिला इंतजामिया की जानिब से नहीं दी गई थी। एसओपीज की खिलाफ वर्जी और कोरोना सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान 12 कह चुके हैं कि वो फिलहाल जलसा ना करें, लेकिन जब जिला इंतजामिया की जानिब से जलसा करने की इजाजत ना मांगी गई तो जिला इंतजामिया ने जलसा करने की इजाजत नहीं दी थी, जिसके नतीजे में एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई और उसके बाद से लेकर अब तक मुल्तान का जो सियासी पारा है वो हाई है। मुल्तान में गो के जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त इंतहाई गर्म हो चुकी है। रात के इस वक्त भी हालात जो हैं वहां पर कशीदा दिखाई दे रहे हैं। नफरी वहां पर पुलिस की मौजूद है। पीडीएम के जो कारकुनान हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर तशद्दुद भी किया जा रहा है। ये बराह रास्त मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर रहे हैं।
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 30 नवंबर को जलसा है मुल्तान के अंदर, और आसिफा भुट्टो जरदारी भी उसमें शिरकत करने वाली हैं और वो अपना पहला खिताब भी करेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। ट्विटर के जरिए उन्होंने कासिम गिलानी के मुतालिक भी ट्वीट किया कि उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम इसकी मजम्मत भी करते हैं। बहरहाल जो कारकुनान हैं, वहां पर जितने भी कारकुनान हैं पीडीएम के, वो चार्ज दिखाई दे रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जलसा होगा। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियां जो हैं वो किसी सूरत भी हमारे मोराल को लेट डाउन नहीं कर सकती। हमारे हौसले जो हैं बुलंद हैं, हमारे हौसले पस्त पुलिस की गिरफ्तारियां नहीं कर सकती। हमने अयूब खान को भी देखा है, हम इमरान खान साहब को भी देखेंगे, और ये जमहूरियत है, एहतजाज करना हमारा हक है, एहतजाज हम करके रहेंगे। 30 नवंबर का जलसा हर सूरत होगा और हर हाल में होगा। ये मनाज़िर मुलाहिजा कर रहे हैं किला कोहना कासिम बाग के ताज़ा तरीन मनाजिर हैं जो इस वक्त आप अपनी रोही टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। ये मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। इस वक्त क्रेनें वहां पर बाहर मौजूद हैं किला कोहना कासिम बाग के, और क्रेनों की मदद से जो रास्ते हैं वो क्लियर किए जा रहे हैं, ट्रॉली को हटाया जा रहा है। इसी दौरान यहां पर सूरत हाल कशीदा हुई थी, जिसके नतीजे में कासिम गिलानी को गिरफ्तार करके थाना गुलगश्त मुंतकिल कर दिया गया है। कल संडे है, मुमकिन तौर पर लग यूं रहा है कि कल उनकी जमानत भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कानून के मुताबिक उन्हें मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। कारकुनान जो है वो रात गए तक यहाँ पर मौजूद है, लेकिन देखना ये है कि ये रात गए तक जो मौजूद कारकुनान हैं वो इस हवाले से क्या इकदाम जो हैं वो करते हैं, और आने वाला वक्त इस हवाले से क्या फैसले जो है वो करने जा रहे हैं, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ जो कारकुनान की तादाद है यहाँ पर वो भी कम होती जा रही है। अब से कुछ देर कबल तक ये पिंडाल आधा तकरीबन भर चुका था, और इसके साथ साथ जो कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो कारकुनान की तादाद है वो कम होती जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद होंगे। क्या कहेंगी मोहतरमा, दोबारा से ही आपकी तरफ आते हैं, क्या सी सूरत हाल को अब तक देख रही हैं और आने वाला वक्त क्या फैसले करने जा रहा है? आने वाला वक्त ये फैसला करेगा कि सिलेक्टेड भाग जाएंगे और इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का दौर आएगा, जियालों का राज होगा। आप जियालों को जितना रोकेंगे, जितना डराएंगे, धमकाएंगे, दमादम मस्त कलंदर तो होगा, जरूर होगा, और सुबह से जाएगा, बल्कि 3-4 दिन से शुरू हो चुका है। तमाशा तो चल रहा है। ये जितना उनको डरा धमका रहे हैं, उनके हौसले इतने बढ़ रहे हैं, इतने उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला जलसा तो होगा। जलसा तो नहीं रोक सकता कोई, दुनिया की ताकत जलसा नहीं रोक सकती। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है, फाउंडेशन डे है पार्टी का, वो तो जोरों शोर से मनाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। जज्बा जो है वो जोरों शोर से मनाया जाएगा। और भी हमारे साथ कारकुनान मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आज सुबह से आप देख रहे हैं, आप चश्मदीद गवाह हैं कि किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अपने कारकुनान के शाना बशाना है, और किस तरह ये स्टेडियम का कब्जा किया गया स्टेडियम पर, और अपने यहाँ पे इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये कठपुतली ज्यादा देर रुकने वाला नहीं है, ये अब जाने वाला है। तो उसके जाने के जो फड़फड़ाहट है वो फड़फड़ा रहा है थोड़ा सा। हाँ, कर ले, कोई बात नहीं, हम भी इधर ही हैं, हम भी ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना भागने वाले हैं। हाँ, हालांकि हमने 7-8 साल इसके ये धरने, इसके जलसे भुगते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखे हैं कि क्या क्या तमाशे होते रहे हैं इस मुल्क के साथ। तो अब अगर पुरअमन जलसे हो रहे, तो मेरे ख्याल में ये जिस तरह इसको हक था, हमें भी हक है, हम भी इसके खिलाफ खड़े हैं। तो इंशाल्लाह ताला ज्यादा दूर नहीं है, अब इनका मामलात खत्म होने वाले हैं। ये हमारा हक है, ये हम ये अपना हक का इस्तेमाल करते रहेंगे। ये इसमें कोई बात नहीं, अगर ये तशद्दुद का रास्ता बनाते हैं या ये क्रैक डाउन करते हैं हमारे कारकुनों को, तो हम हाजिर हैं, हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला इनके साथ, अपना प्रोटेस्ट करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। आज सुबह से गिलानी बिरादरान
सुबह से कारकुनान के साथ। वसीम शहजाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। मुल्तान से हमारे साथ जमशेद रिजवानी साहब मौजूद हैं। रिजवानी साहब, एक मरतबा फिर से बताइएगा, कहां पर आप मौजूद हैं? ऐसा लग रहा है कि आप जलसगाह के बाहर ही मौजूद हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? ताज़ा सूरत हाल क्या है और किस तरह से सारे मामलात को देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो जगह है ये स्टेज है जो कासिम बाग स्टेडियम का, जहां पे पीडीएम जलसा करना चाहती है। तो यहाँ पे स्टेज की तैयारी का काम जारी था, लेकिन जो पुलिस का क्रैकडाउन हुआ है और उसके बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के खास तौर पे लीडरशिप अभी भी उनमें से कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। और अली कासिम गिलानी गिरफ्तार हुए हैं, साद कांजू मुस्लिम लीग नवाज के जो मुल्तान डिवीजन के सेक्रेटरी इतलात हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। एमपीए साबिक एमपीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर जावेद सदीकी गिरफ्तार हुए हैं। तो ये सारा जारी है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज के डिवीजनल सदर और एमएनए अब्दुल रहमान कांजू जो साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो अब उनकी हिकमत अमली आगे क्या हो सकती है। कांजू साहब, क्या देख रहे हैं जो क्रैकडाउन हुआ है और आप इस वक्त यहाँ तनहा मौजूद हैं, JUIF के लोग भी मौजूद हैं, आप क्या देख रहे हैं? क्या जलसा हो सकता है अब आगे या नहीं? इंतजामिया के सेक्टर को कैसे देखते हैं? मैं PDM के तमाम कारकुनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है, ये हमारी फतह का दिन था और इंशाअल्लाह आज मोमेंटम बन गए। आप कल देखिएगा कि ये शहर कितना दमादम मस्त कलंदर करेगा, जो हम नहीं चाहते थे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो क्रैकडाउन है आप इसकी तवक्को कर रहे थे और आप इसके लिए तैयार थे, और अब इस वक्त क्या समझते हैं कि आपकी जो तैयारियां हैं यहाँ पे पिंडाल की वो तो मुतासिर हुई हैं? यकीनन ये सुबह से पानी बंद हुआ था दोपहर से, और उसके बाद जो है खाना भी वहाँ पे रोका हुआ था, जिसकी वजह से जो है हम सारे रास्ता खुलवा रहे थे। और हम इनको बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि आप मेहरबानी करके कम से कम खाने और पानी की हद तक जो है वो आने दें, बाकी जो है आपकी जिम्मेदारी है आप वो निभाएं। तो उन्होंने ये फैसला किया। अब ये मुल्तान की आवाम देखे, हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया। अब ये मुल्तान की आवाम देखेगी और पाकिस्तान की आवाम देखेगी कि इस हुकूमत का असल चेहरा क्या है। आप क्या जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के पीर फयाज शाह साहब, आप सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान पहुंच रहे हैं? अपना दौरा जो उन्हें कल पहुंचना था लेकिन अभी रवाना हो गया मुल्तान। मौलाना, तो आप इस सारे क्रैकडाउन को कैसे देखते हैं? JUIF क्या सोच रही है? देखें जी, ये जमहूरियत के नाम पर जो तमाशा मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, हम उसके खिलाफ एक अपना जमहूरी अंदाज में एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। हमारे 4 जलसे पहले हो चुके हैं PDM के ज़ेरे एहतमाम और बड़े पुरअमन हुए हैं। पेशावर वाला जलसा भी इन्होंने इजाज़त नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद जो हमने किया है, तो कोई अगर इन्होंने रेजिस्टेंस हमें नहीं पैदा की तो हमने भी आगे से कोई ऐसा नहीं किया कि लॉ लेसनेस की हो। हमारी तरफ से लॉ की पाबंदी की जा रही है, जबकि ये मौजूदा गवर्नमेंट पता नहीं क्यों इंतजामिया को इस हद तक मजबूर कर रही है कि ये लोगों को इतना बूस्टअप कर दें कि लोग अपना जमहूरी हक लेने के लिए लड़ने मरने पर आ जाएं। हम नहीं चाहते, कतन नहीं चाहते कि हमारे मुल्क का जो नज़्म नस्क है वो किसी भी फसाद का शिकार हो, लेकिन कुछ नादीदा कुव्वतें ऐसा चाह रही हैं कि ये तसादम की तरफ चले जाएं। हम आखिरी हद तक इस तसादम से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपना जमहूरी जो हक है हमारा, ये हम हर कीमत पर इस्तेमाल करेंगे। इस नालायक नाअहल हुकूमत के खिलाफ, इस सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ हम अपना आखिरी वक्त तक इसको निकालने तक इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाज जारी रहेगा। और ये बड़ी पुरअमन तहरीक है। अगर इसको तशद्दुद की तरफ ले जाया गया तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इसी हुकूमत के कलपुर्जों पर होगी और इनको लाने वालों पर होगी और मुकामी इंतजामिया के ऊपर होगी। जमीयत उलमा इस्लाम का आपने मौक़िफ़ दिया, यहाँ पे इस वक्त आप मौजूद हैं यहाँ सारी PDM की दीगर क़यादत के साथ। कांजू साहब, आप समझते हैं कि ये क्रैकडाउन आप तवक्को कर रहे थे और आपकी हिकमत अमली क्या थी इसको काउंटर करने के हवाले से? अली कासिम गिलानी गिरफ्तार हुए, डॉक्टर जावेद सदीकी गिरफ्तार हुए, साद कांजू साहब गिरफ्तार हुए और आरिफ शाह पीपल्स यूथ के गिरफ्तार हुए, बहुत से कारकुन गिरफ्तार हुए PDM के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो आप क्या समझते हैं अब जलसा कल के लिए आपके पास क्या है ऑप्शन? ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सुबह से कि ये, और मुख्तलिफ ज़राए से ये हमें थ्रेट्स पहुंच भी रही थी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इन्होंने जो है मौजूदा हमारे जलसे को और बूस्ट दिया है, जिसके ऊपर हम इनके शुक्रगुजार हैं। और हमारा ये, हम किसी किस्म का हमने कानून नहीं तोड़ा, जैसे फयाज शाह साहब ने कहा।
اللہ کی کرم نوازی سے ہمارا یہ احتجاج جو ہے ہوگا، اور میں ملتان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک جلسہ کرنا تھا اور جلسہ کر کے ہم نے واپس چلا جانا تھا۔ اب میں جو پریمپٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ملتان کی ہر گلی محلے میں جلسہ ہوگا اور لوگوں کو خاصی انکنوینئنس کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا، آپ کی حکمت عملی اب اگر قاسم باغ اسٹیڈیم میں آپ نہیں کر سکتے اور پنڈال اگر آپ کو بنانے کا موقع نہیں بنتا تیار کرنے کا، تو پھر آپ کا دوسرا آپ کی حکمت عملی کیا ہے، پلان بی کیا ہے؟ پی ڈی ایم کے پاس پلان بی بھی ہے جو کہ ہمارے سرکردہ رہنماؤں کے پاس ہے۔ کل قیادت تقریباً ساری پہنچ جائے گی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کنٹینر ہمارا راستہ روکتے ہیں، یا میں سمجھتا ہوں ایسا نہ کریں۔ میرا مشورہ ہے کہ ایسا نہ کریں، اور جب قیادت کے ساتھ ورکر ہوتا ہے تو اس کا حوصلہ بہت بلند ہوتا ہے، تو کسی بھی کنفرنٹیشن سے بچنا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اب اس ساری صورتحال کو کس انداز میں دیکھ رہا ہے اس کریک ڈاؤن کے حوالے سے، اور آپ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں آپ نے ایک میسج دیا ہے اس کے ذریعے، لیکن کل آپ جمعیت علماء اسلام کا کیا لاہ عمل ہے پیپلز پارٹی کے اور ان کے؟ دیکھیں جی، ہم ساری پارٹیاں شانہ بشانہ ایک دوسرے کے کھڑی ہیں۔ لاہ عمل ہمارا یہ ہے کہ ہم اسی گراؤنڈ میں انشاءاللہ تعالی، یہ میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسی گراؤنڈ کے اندر ہم اپنا یہ پروگرام کریں گے۔ یہ جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کر لیں، یہ گجرانوالا سے شروع ہوئے ہیں، انہوں نے ہر جگہ پہ ہمارا جلسہ خراب کرنے کی، رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی ہے، پرمیشن نہیں دیتے رہے۔ بالکل آخری سٹیج پہ جا کر انہوں نے ہمیں گجرانوالا جلسہ کی اجازت دی تھی۔ گجرانوالا اسٹیڈیم گواہ ہے کہ اتنی تاریخ کے اندر کبھی نہیں بھرا، اور اس سے 10 گنا مجمع باہر کھڑا ہوا تھا۔ یہ ملتان کا آپ کا قاسم باغ اسٹیڈیم کم پڑ جائے گا، میں شرطیہ کہتا ہوں اللہ کے فضل اور کرم سے۔ یہ ہماری حکمت عملی ہے کہ ہر قیمت پر ہم نے یہ پروگرام اسی جگہ پر کرنا ہے جی۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا حق لے کر رہیں گے، اس گورنمنٹ کو ہم روانہ کر کے دم لیں گے۔ عبدالرحمان کانجو صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے، مسلم لیگ نواز کی طرف سے اس صورتحال کے بعد کل کون کون سے لیڈر جوائن کر رہے ہیں صبح، اور آپ رد عمل صبح کیا دینا چاہتے ہیں، اور پرسوں 30 کو مریم نواز صاحبہ کی کنفرمیشن ہے اس جلسے میں آنے کی، شرکت کی؟ جی بالکل کنفرم ہے، میری ان سے خود بات ہوئی ہے، میں رائمنڈ گیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب نے واضح ان کو کہا ہے کہ ہمارا دکھ جو ہے ہماری 4 دیواری تک ہے، لیکن قوم جس دکھ سے گزری ہے پچھلے 2.5 سالوں سے، ہم نے اس کا مداوع کرنے کے لیے آپ کو فیلڈ میں نکلنا پڑے گا، اور انہوں نے یہ اعادہ کیا کہ زندگی رہی تو میں وہاں پہ ضرور پہنچوں گی۔ کل کے لائے عمل کے مطابق آج ایک نئی سچویشن ارائز ہوئی ہے، جیسے فیاض شاہ صاحب نے کہا ہمارے پاس سیکنڈ آپشن کوئی نہیں، لیکن اور سیکنڈ آپشن اگر کوئی ہے بھی صحیح تو ہم اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اسی قلعہ میں اپنا جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں کرنے دیا جائے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پرسوں یہاں پہ شایان شان جلسہ ہوگا۔ آپ دونوں موجود ہیں یہاں پہ، کافی لوگ گرفتار ہوئے ہیں، آپ کو گرفتاری سے ڈر نہیں لگا؟ گزارش یہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت جو ہے ہمیں گرفتاریوں سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ یہ بے خوفی اور یہ اعتماد اس وقت، اور رات گئے اسٹیڈیم میں لوگ نہیں ہیں، لیکن آپ بھائی ہمارے لیڈر جب اتنی قربانیاں دے سکتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر انصاف ہوتا جو نظر آتا تو ہم ان کو فوری طور پہ بلا لیتے۔ میاں شہباز شریف صاحب جس نے اپنے ہاتھوں سے اس پنجاب کو اور خصوصاً جنوبی پنجاب کو ہیلپ کیا ہے، اور الحمدللہ انہوں نے بہت زیادہ یہاں پہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ کام کیا، آج وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو جو ہے 5 دن یا 14 دن کی پے رول بھی وہ بندہ ڈیزرو نہیں کرتا۔ ہمیں اپنی لیڈرز کی قربانیاں دیکھ کے ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ جو پیپلز پارٹی کے لوگ یہاں گرفتار ہوئے اور مسلم لیگ نواز کے بھی گرفتار ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی کارکن اپوزیشن سے تعلق رکھنے والا وہ کس حد تک ابھی بھی موٹیویٹڈ رہے گا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو اسیران تھے جو رہا ہو کے آئے تھے، جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ میں ان کو پہلے بھی جانتا تھا، وہ اتنے حوصلے میں نہیں تھے۔ تو یہ سیاسی ورکر کے لیے یہ ایک میرا خیال ہے تمغہ ہے، اور انشاءاللہ کوئی ہمارا ورکر پی ڈی ایم کا اس گرفتاریوں سے گھبرایا نہیں ہے۔ شکر۔ پچھلے 20 سال کی سیاست کو دیکھیں تو بہت کم ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے اپوزیشن میں رہ کر اس طریقے سے سرگرمی میں حصہ لیا ہو، تو یہ آپ کا تجربہ کیسا جا رہا ہے؟ پہلی بار اس طرح کی اپوزیشن کی سیاست میں حصہ لینا اور اس کو فیس کرنا، اور اس طرح رات گئے تک تمام تر خدشات کے باوجود ڈٹے رہنا، یہ
आपका ये तजर्बा कैसा है कांजू साहब? जमशेद भाई, अब मैं ये समझता हूँ कि मैं 100% कन्विंस होकर घर से निकला था कि इमरान खान एक नाअहल हुक्मरान है, जिसको हम हुक्मरान समझते ही नहीं है। इस बंदे ने बड़ी एफर्ट की, लेकिन इसने होमवर्क कोई किया नहीं हुआ था। आज मैं ये सोच कर निकला हूँ जमशेद भाई कि अगर आज भी हम इसके खिलाफ ना निकले ना तो कौम हमें माफ नहीं करेगी। आप समझते हैं कौमी जिम्मेदारी के तौर पे आप कौमी जिम्मेदारी मैं यकीनन सर से लेकर पांव तक इस चीज़ पे कन्विंस हूँ कि मैं कौमी फरीजा अदा कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के लिए निकला हूँ, गरीब आवाम के लिए निकला हूँ, किसानों के लिए नून लीग निकली है, मजदूरों के लिए निकली है, सनतकार के लिए निकली है, और हर तबका फिक्र के लिए हम निकले। और इस टाइम अगर हम ना निकलते तो हमें शायद तारीख भी माफ़ नहीं करेगी और हमारा वोटर भी माफ़ नहीं करेगा। अच्छा, आप समझते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जब कल यहाँ होंगे, आपकी लीडर राना सनाउल्लाह भी यहाँ होंगे, और इसका जो रद्द अमल जब सुबह होगी तो उसका इस शहर में आप क्या रिस्पांस देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि लोग देख रहे हैं कि हमारा कोई ज़ाती मोटिव नहीं है। हम सारे निकले हुए हैं कि जो कौम के साथ एक रवैया रवा रखा जा रहा है हर तरह से। दुकानदार परेशान है, गुर्बत इतनी ज़्यादा है, दवाइयाँ नहीं ले सकते, किचन नहीं चल रहा, बिल जो है वो जो है पे नहीं कर सक रहे। तो ये जो है हर बंदा निकलेगा, और ज़्यादा मेरा उम्मीद, मुझे यकीन करें जमशेद, आप मुझे जानते हैं, मेरे साथ पीटीआई वाले भी बात करते हैं तो वो भी पछता रहे हैं इस बंदे को वोट देकर, और ये इखलाकी और हर किस्म का जवाब खो चुके हैं। वापस आते हैं इस वक्त इस जलसा गाह में जिसको आपने जलसा गाह बनाने की कोशिश की है। पीर अफयाज शाह साहब, आप भी और कानू साहब भी मौजूद हैं इस वक्त। आप क्या समझते हैं कि आपका कारकुन अगर इस वक्त ज़्यादा बड़ी तादाद में स्टेडियम में मौजूद होता तो शायद पुलिस को इतना बड़ा क्रैकडाउन शायद ना कर पाती? देखें जी, ये पुलिस का क्रैकडाउन अपनी जगह पर है, उन्होंने अपना जिम्मेदारी अदा करनी है, भले जबरन ही करनी पड़े। उनके अंदर भी ज़मीर है, वो भी समझते हैं कि ये हम एक गलत कदम उठा रहे हैं अपनी जो उनकी अफसर शाही है उसके हुक्म पर, और उसके पीछे जो गवर्नमेंट है। लेकिन हमारा कारकुन ना डरा है, ना दबा है, ना झुका है। आप सुबह देखेंगे, परसों देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि कारकुन पूरे जोश और जज्बे के साथ इसी ग्राउंड के अंदर मौजूद होगा। और गिरफ्तारियों की जो आपने बात की है, गिरफ्तारियां तो जेवर है एक सियासतदान का। हम सियासत के मैदान में उतरते हैं तो ये खौफ कांजू साहब भी आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, यकीनन आपके लिए मेरे कायद ने हर मार्शल लॉ के खिलाफ स्टैंड लिया है और जेलें भी देखी है, कैद भी हुए हैं। हम भी उन्हीं के कारकुन हैं। मौलाना फजलुर रहमान आ रहा है और इंशाअल्लाह ताला मुल्तान देखेगा कि मौलाना आ रहा है। यूआई फेक की सेंट्रल कमेटी के रुकन हैं। आप क्या समझते हैं कि सुबह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है उसमें क्या ऐलान हो सकता है? मौलाना सीधा सीधा इधर अपना जलसे का ऐलान करेंगे और मौलाना जब चलेंगे तो पूरा मुल्तान उनके साथ चल रहा होगा जी, अल्लाह के फजल से। हर पार्टी चल रही होगी। मौलाना पीडीएम के लीडर है, पूरा पीडीएम की हर जमात उनके साथ चल रही होगी। कासिम बाग स्टेडियम आएंगे, आप समझते हैं? बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। और कल जब हम आएंगे ये सेटअप भी इंशाल्लाह लगाएंगे। अगर हमारा एक झंडा भी इन्होंने हिलाया उसका भी हम इनसे हिसाब लेंगे। ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमने अपने जेब से पैसा लगा के ये सारा सेटअप लगाया है। ये कौन है, कौन सा कानून इनको इजाजत देता है कि इसको आके उखाड़े? कोई इखलाकी जवाज नहीं है। हम एक अपना प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, किसी किस्म का कोई जवाज नहीं बनता इनका कि हमारे सेटअप को क्यों उखाड़ेंगे। क्या मार्शल लॉ लग गया है? क्या इस कौम को पूरा इन्होंने कैप्चर कर लिया है? नहीं करने देंगे हम। यही तो हमारी लड़ाई है। कौम का मैंडेट चोरी हुआ है, हम उसके खिलाफ निकले हैं। हम अपना मैंडेट लेना चाहते हैं। वोट का हक जो कौम का है वो कौम को देना चाहते हैं। चंद लोग बैठकर ड्राइंग रूम की सियासत करके चंद इदारे अपना तसल्लुत इस कौम के ऊपर नहीं रख सकते अब ज्यादा देर। कौम बेदार हो रही है, उनको भी होश के नाखन लेने चाहिए। मैं तजवीज देता हूं कि खुदारा जो हो गया इस कौम के साथ खिलवाड़ वो हो गया, बस कर जाएं, खुदारा बस कर जाएं और इस कौम को जीने दें। कौम को अपना मैंडेट इधर मैंडेट के तहत जो गवर्नमेंट बने वो गवर्नमेंट होगी। हम इसको गवर्नमेंट तस्लीम नहीं करते। इस वक्त देखें तो हुकूमत ने जो जवाब बना रही है जिस वजह से इस जलसे की इजाजत देने से इनकार किया गया है वो है कोरोना एसओपी की खिलाफ वर्जी हो सकती है, हो रही है और खतरा बढ़ रहा है। अब देखिए, अगर आप देखें इस वक्त भी मैं भी उसमें शामिल हूं और आप भी, हमने मास्क नहीं यूज किया और उनको खतरा ये है कि अगर 1 लाख लोग आपके इंटरव्यू के लिए हमने मास्क उतारा है जी। हमने तो मास्क जेब में आपको देख के डाला है कि चलो आपसे बात कर ले।
मास्क हमारे पास है और मास्क हमने पहने हुए सब। एसओपी वाकई एक थ्रेट के तौर पे जो एसओपी का हम सबको फॉलो करना चाहिए, या हुकूमत उस एसओपीज को, कोरोना एसओपीज को इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन की सरगर्मी को रोकने के लिए? जी, गुजारिश ये है कि सर ये जो कुदरती आफात को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जब पीडीएम की तमाम जमातें कह रही थी कि लॉकडाउन होना चाहिए तो तब कोरोना बहुत स्वेयर था और उस वक्त लोग ज़्यादा डरे हुए थे। ये शुमाई किस्मत है कि जहाँ पीडीएम के जलसे होते हैं वहाँ पे कोरोना का ज़्यादा शोर मच जाता है। पहले क्वेटा में मचा, फिर उसके बाद कराची में मचा। तो हम ये समझते हैं कि कोरोना से तो जान जाए ना जाए, उससे सर्वाइवल मुमकिन है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत में किसी भी इंसान का सर्वाइवल मुमकिन नहीं है और सर्वाइवल आसान नहीं है। सो हम कुर्बानी देंगे। हमने पूरी एसओपीज पे अमल दरामद करना था। ये आज अगर इसको थ्रेट समझ के कोई जो है वो खिलवाड़ कर रहा है इंसानों की जिंदगियों के साथ, तो वो हैं इमरान खान। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त सैकड़ों कारकुन यहाँ मौजूद थे इससे पहले, लेकिन ज़ाहिर पुलिस के क्रैकडाउन की वजह से वो फरार होते गए। फरार होते मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्हें भागना पड़ा डर और खौफ की वजह से। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त आप चंद लोग यहाँ रह गए हैं स्टेडियम के अंदर, तो आप क्या समझते हैं कि इस सब को आपने गिरफ्तारियां भी देखी और कारकुनों और कुछ रहनुमाओं को जाते भी देखा, क्या सोचते? गिरफ्तारी जो है, मैं ये समझता हूँ कि गिरफ्तारियां इन्होंने ज़बरदस्ती की हैं। यहाँ से हमने अपने उन दोस्तों को भेज दिया जिन्होंने कल जुलूस लेकर आने हैं। कोई यहाँ से भागा नहीं। एक भी फर्द पीडीएम का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, जेयूआई का, सब हमने मसलहत के तहत यहाँ से रवाना किए हैं। और कल वो लोग हमारे जो मुंतजमीन थे, जिनके ज़िम्मे प्रोग्राम थे, जिन्होंने लोगों को निकालना था, उनको हमने स्ट्रेटजी के तौर पे हमने भेजा है और इंशाल्लाह कल और जोर से। फिर आप क्यों रोके? हम यहाँ पे हम मौजूद, क्या देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें निकालें तो ज़बरदस्ती निकालें, वरना हम यहीं पे। आप जी बिल्कुल, हम बैठे हुए हैं जी, हम बिल्कुल बैठे हुए हैं और डट कर बैठे हुए हैं। बाई फोर्स अगर हमें उठाने की कोशिश की जाएगी तो इसका इंशाल्लाह कल और परसों आप रद्द-ए-अमल भी देखेंगे। दूसरा, आपने कोविड-19 की बात की है। हम समझते हैं कि जो कोविड-18 है ना जी, वो जो मुसल्लत किया गया है 2018 के इलेक्शन के नतीजे में, वो इस कोविड-19 से ज़्यादा तबाहकुन साबित हो रहा है मुल्क के लिए। उसको हम उसका अपा करने के लिए, उसका कोई ना कोई वो हल निकालने के लिए हम इधर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला हम मौजूद रहेंगे। मौलाना आ रहा है। आपने हमें ज्वाइन किया। आप इस वक्त चंद ही लोग लीडरशिप में से रह गए हैं। अब्दुर्रहमान कांजू जो मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं, मुल्तान डिवीजन के सदर हैं, इस वक्त भी एमएनए हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की सेंट्रल कमेटी के रुकन पीर फयाज साहब मौजूद हैं। बाकी लोग जो यहाँ से जा चुके हैं उनके बारे में उनका कहना यह है कि उन्हें हिकमत अमली के तहत भेजा गया है और सुबह आप देखेंगे कि हमारा रद्द-ए-अमल या हमारी क़यादत का रद्द-ए-अमल क्या होगा और हमारा लाहे-अमल क्या होगा। जी और बेहतर जमशेद रिजवानी हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक। किला कोना कासिम बाग के ये बाहर के मनाजिर आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। क्रैकडाउन जारी है, गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, कंटेनर्स हटाए जा रहे हैं। ये मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। 7 कांजू हैं ये जिनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से मुतालिक। आपको बताते चलें कि 7 कांजू को भी गिरफ्तार करके वैन में ले जाया जा रहा है। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। गाड़ियों को क्रैकडाउन जारी है और मुतादिद जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। रात भर से क्रैकडाउन का अमल जो है वो जारी है और हर गुजरते लम्हे के साथ एक नई गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा रही है। आपको बताते चलें एक नई गिरफ्तारी हुई है मुल्तान में। कारकुनान की जो गिरफ्तारियां हैं वो अमल में लाई जा रही हैं। कारकुनों की पकड़ धकड़ जारी है। डिवीजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कांजू उमर फारूक भट्टी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 30 नवंबर को पीडीएम का जलसा है, उसी सिलसिले की कड़ी में जो कारकुनान हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है।